Hello, welcome to all. This is Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English, SRP Government College, Bandikui. Today we will discuss or study the famous short story of Rabindranath Tagore's Living or Dead. Before to start this story, Living or Dead, I would like to give a brief information about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is one of the greatest, or undoubtedly one of the greatest writer of the modern India. He was born on 1861 and died in 1941. Rabindranath Tagore, as a writer, he looked at the life from the humanist point of view. He is a true apostle, universal brotherhoodship and understanding. He was embodied these lofty ideals and established a Santi Niketan, a university that was to transmit the message of love and selfless knowledge to all mankind. When the when India was struggling for the freedom, he passes away in that critical phase. He was deeply mourned by the countrymen and countless readers he admired all over the world. Rabindranath Tagore was a versatile genius who was not only wrote painting, acted, composed music, but also took an active part in the national struggle of the freedom movement of India. He was endowed with a rare imagination and a felicity of expression. He wrote more than 50 dramas, 40 volumes of novels, and short story fictions, besides innumerable collection of his poems and philosophical essays. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize for the literature, particularly Gitanjali, which he himself translated into English and which is considered his masterpiece. This was followed by the invitation which took him many parts of the world, including Europe, China, Japan, United States, and the Soviet Union. The present story, Living or Dead, is one of the famous story of Rabindranath Tagore. It is taken from the collection of his entitled Hungry Stones. Its theme is very striking. What is the difference between life and death? The author writes, he quotes, by dying, Kadambini had given the proof that she was not dead. Unquote. The story has also a satiric touch. It is a mild satire on conventional social values. तो ये प्रेजेंट स्टोरी है, इसको हम अगर डिस्कस करें अब, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, सो आई वुड लाइक टू गिव you a brief short note of the story, and then we'll give you the detailed story. We will read the story, continue, so be attentive. तो प्रेजेंट पोइम है मृत या जीवित, टैगोर की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कहानी, जैसा मैंने कहा आपको, हंग्री स्टोन से का नामक का एक संकलन था, कलेक्शन था, वहाँ से ली गई है। इसकी कथा वस्तु बड़ी असामान्य है। जीवन और मृत्यु का अंतर क्या होता है, इसमें लेखक दिखाता है कि कादम्बिनी मर कर के ये प्रमाण देती है कि वो मृत नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यंग है कहानी में। हमारे पारस्परिक जीवन मूल्यों पर कहानी में हल्का व्यंग जो दिखाई देता है वो इसके अंदर है। तो अब संपूर्ण कहानी का हम एक हिंदी अनुवाद के रूप में इसका मैं रीडिंग करता हूँ, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा लिविंग और डेड का, उसमें हम इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एंड इसके थीम के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज द कैरेक्टर ऑफ कादम्बिनी एंड द सोशल वैल्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहानी है मृत या जीवित, रानी हाट के एक जमींदार शारदा शंकर के घर में रहने वाली विधवा जो अपने परिवार के साथ है,
शारदा शंकर नाम के एक जमींदार की एक कहानी है। उसके परिवार में कोई रिश्तेदार नहीं था। एक के बाद एक सबकी मृत्यु हो गई। नहीं पति के परिवार में ऐसा कोई था जिसको कि अपने पति के भाई का एक बेटा उसे बहुत प्रिय था। उसके जन्म के बाद काफ़ी समय तक उसकी माँ बीमार रही, जिसके कारण विधवा कादम्बिनी ने ही उसका लालन पोषण किया। यदि और कोई दूसरी के बच्चे का लालन पोषण करती तो उसके प्रति उसका स्नेह और भी ज़्यादा होता, क्योंकि उसका उस पर कोई अधिकार नहीं बनता। खून का अधिकार सिर्फ प्यार के नाते ही उसका अधिकार होता है। ममता अपने अधिकार को किसी दस्तावेज द्वारा सिद्ध नहीं कर सकती जो कि समाज को स्वीकार्य हो, और उसे सिद्ध करना भी नहीं चाहती। वह सिर्फ अपने जीवन के अनिश्चित खजाने की दुगनी भावना से पूजा करती है, और इस प्रकार उस विधवा का सारा प्यार उस बच्चे पर निछावर हो गया है। श्रावण की एक रात को कादम्बिनी की अचानक मृत्यु हो गई। किसी कारण से उसके हृदय की धड़कन रुक गई। संसार में हर जगह कार्य के पहले की तरह चलते रहें, केवल इस कोमल लघु सीने में जो कि प्रेम से पीड़ित था, समय की घड़ी हमेशा के लिए ठहर गई। कहीं पुलिस उन्हें तंग न करे, इस डर से जमींदार ने 4 ब्राह्मण और नौकर विधवा के साथ के शरीर को बिना रीति रिवाज के जलाने के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान गांव से बहुत दूर था। वहां तालाब के निकट एक झोपड़ी थी। उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़, इसके अलावा कुछ नहीं था। पहले जो नदी वहाँ बहती थी वह बिल्कुल सूख गई, और जल के अलावा कुछ नहीं। जल प्रवाह के एक भाग में ही खोद कर तालाब बना दिया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार के कार्यों को संपन्न किया जा सके। लोग तालाब को उस नदी का एक भाग ही समझते थे और उसी प्रकार इसकी पूजा करते थे। शरीर को झोपड़ी में ले जाकर चारों आदमी वहाँ बैठकर लकड़ियों का इंतजार करने लगे। समय इतना लंबा लग रहा था कि उनमें से 2 आदमी बेचैन हो उठे और ये देखने चले गए कि लकड़ी अब तक क्यों नहीं आई। नितई और गुरचरण के चले जाने पर विधु और वनमाली शरीर की निगरानी के लिए रुक गए। श्रावण की अंधेरी रात थी। तारों से रहित आसमान में घने बादल छाए हुए थे। अंधेरे कमरे में दोनों आदमी चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी माचिस और लैंप बेकार थे। माचिस गीली हो गई थी और पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं जल रही थी। लालटेन बुझ गई थी। लंबी चुप्पी के बाद एक ने कहा, भाई, अच्छा होता यदि हमारे पास तंबाकू का प्याला होता, जल्दबाजी में हम कुछ नहीं लेके आए। दूसरे ने उत्तर दिया, मैं दौड़कर जाता हूँ और सब कुछ जो हमें चाहिए वो लाता हूँ। बनमाली, क्यों जाना चाहता है? यह समझाते हुए विधु ने कहा, मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि इस बीच यहाँ मुझे अकेले ही बैठना पड़ेगा। फिर बातचीत बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगे। वैसे ही वे मन ही मन उन दोनों को कोसने लगे जो लकड़ी लेने के लिए गए थे। उन्हें शक होने लगा कि वो दोनों किसी अच्छी जगह बैठकर गप्पे मार रहे होंगे। तालाब से मेंढकों और झींगरों की निरंतर सुनाई देने वाली आवाज़ के अलावा और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे बिस्तर थोड़ा सा हिला, मानो सबने करवट ली हो। विधु और वनमाली कांप उठे और राम राम बोलने लगे। कमरे में एक गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। एक ही क्षण में दोनों व्यक्ति झोंपड़ी के बाहर कूद पड़े और गांव की ओर दौड़े। करीब 3 मील दौड़ने के बाद उन्हें अपने साथी मिले जो एक लालटेन के साथ वापस आ रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि वे धूम्रपान करने गए थे और लकड़ियों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, परंतु उन्होंने घोषणा की कि एक पेड़ काट लिया गया है और जब उसके टुकड़े किए दिए जाएंगे तो तुरंत वो लेकर के आ जाएंगे। तब विधु और वनमाली ने उन्हें बताया कि झोंपड़ी में क्या हुआ। नितई और गुरचरण ने उनकी कहानी का मजाक उड़ाया और काम छोड़ आने के लिए गुस्से में गाली दी। बिना देर किए चारों झोपड़ी की ओर लौट आए। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्होंने देखा कि शरीर वहाँ से जा चुका था। वहाँ केवल एक खाली बिस्तर था। उन्होंने एक दूसरे की ओर घूरा। क्या कोई गिदड़ उसे ले जा सकता था? परंतु कहीं भी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं था। बाहर आकर उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे के आगे जो मिट्टी इकट्ठी हो गई थी उस पर एक औरत के पैरों के निशान हैं जो हाल ही में बने थे। शारदा शंकर मूर्ख नहीं था और
इस भूत की कहानी में उसे विश्वास दिलाना मुश्किल था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने निश्चय किया कि यह कह देना उचित है कि उसका शरीर को जला दिया। सुबह के वक्त जब आदमी लकड़ी लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बहुत देर कर दी, इस कारण झोपड़ी में जो थोड़ी लकड़ी थी उसी से दाह संस्कार कर दिया गया। इस बात पर किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा, क्योंकि सब इतना मूल्यवान वस्तु नहीं थी और कोई इसे चुरा ले। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि कोई चिन्ह नहीं होने के बावजूद भी अक्सर जीवन रहस्यमय रूप से उपस्थित रहता है और ऊपर से मृत दिखने वाला शरीर में फिर से जीवन आ सकता है। कादम्बिनी की मृत्यु नहीं हुई थी, फिर भी उसके जीवन की मशीन किसी कारणवश अचानक रुक गई थी। जब उसे होश में आया तो चारों ओर देखा और घना अंधकार दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि वह वहाँ हमेशा उसके लिए स्थान पर नहीं है। वह बोली, दीदी तुम्हारे दीदी, परंतु अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह बैठी भयाक्रांत होकर के अपनी मृत्युशैया का स्मरण हो आया, उसकी छाती में अचानक दर्द उठा। अचेतन होने की शुरुआत। उसकी जेठानी बच्चे के लिए कुछ दूध गर्म कर रही थी। तभी कादम्बिनी ये बोलते हुए, बहन बच्चे को यहाँ ले आओ, मैं चिंतित हूँ, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। इसके बाद सब कुछ काला, जैसे स्याही की दवात किसी अभ्यास पुस्तिका पर फैल गई हो। कादम्बिनी की याददाश्त और होश हवास दुनिया की किताब के सारे अक्षर एक ही क्षण में आकारहीन हो गए थे। विधवा को यह याद नहीं आ रहा था कि बच्चे ने आखिरी बार अपनी मीठी आवाज़ में आंटी कहकर कब पुकारा था या नहीं। उसे यह याद नहीं रहा कि जब उसे मृत्यु के लिए अपने अज्ञात यात्रा शुरू करने के लिए संसार को छोड़ा था, तब उस शांत स्थान के लिए उसे प्रेम का वह उपहार मिला था या नहीं जो अनंत यात्रा में खर्च करने के स्वरूप धन स्वरूप होता है। मेरी कल्पना के अनुसार सबसे पहले उसने सोचा होगा कि एकांत अंधकारपूर्ण स्थान यमलोक है, जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए नहीं है। निरंतर देखते रहो, परंतु एक मीठी भीगी हवा का झोंका दरवाज़ा के अंदर आया और उसने मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनी तो स्पष्ट रूप से एक ही क्षण में अपने छोटे से जीवन में दुख दर्द स्मरण हो आए और वह धरती से अपने संबंध महसूस करने लगी। तभी बिजली चमकी और वह तालाब, बरगद का पेड़, मैदान दूर पड़े दिखे। उसे याद आया कि पूर्णिमा के दिन वह कभी कभी इस तालाब में नहाने आती थी और उसे मृत्यु कितनी भयानक लगी थी जब उसने शमशान की ओर एक शव को देखा। सबसे पहले उसके मन में यही विचार आया कि वह घर वापस लौट जाए, परंतु फिर उसके मन में विचार आया कि मैं तो मर चुकी हूँ, मैं घर वापस कैसे जा सकती हूँ, इससे घर वालों पर संकट आ जाएगा। मैं जीवित लोगों के साम्राज्य को छोड़ चुकी हूँ, मैं स्वयं अपना भूत हूँ। उसने सोचा कि यदि ऐसा नहीं है तो वो शारदा शंकर को सुरक्षित पहरे युक्त जनाना से बाहर कैसे निकलती और आधी रात इतनी दूर शमशान में कैसे आ पहुँचती। इसके अलावा यदि उसके दाह संस्कार की क्रिया संपन्न नहीं होती तो वे लोग कहाँ चले गए जो उसे जलाने के लिए आए थे। शारदा शंकर के मकान में चमचमाते प्रकाश में उसने अपने अंतिम क्षण को याद किया और अब अपने एकांत को दूर अंधकारपूर्ण शमशान में पाया। निश्चय ही वह इस धरती के समाज की समस्या नहीं है। निश्चय ही वह एक भयावह जीव है, अपशकुन है, स्वयं अपना भूत है। यह विचार आता ही वे सारे बंधन टूट गए जिनसे वो बंधी हुई थी। उसे महसूस हुआ उसमें चमत्कारिक शक्ति है, असीमित स्वतंत्रता है। जो करना चाहे वह कर सकती है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। इस एक नए विचार की प्रेरणा से पागल होकर वह झोपड़ी से हवा के झोंके के समान दौड़ पड़ी और शमशान में खड़ी हो गई। उसमें तनिक भी भय लज्जा नहीं रही, परंतु जैसे जैसे वह आगे चलती गई उसके पैर थक गए और शरीर में कमजोरी आने लगी। मैदान अनंत फैला हुआ था, इधर उधर धान का खेत थे। कभी कभी वह पाती थी कि वह घुटने तक गहरे पानी में खड़ी हुई है। सुबह की पहली किरण के साथ उसने दूर घरों के पास के बांस जो झुंडों पर बैठे हुए एक पक्षी का स्वर सुना। तब भय ने उसे जकड़ लिया। वह समझ नहीं पा रही थी किस नए संबंध से वह इस धरती पर खड़ी है और जीवित लोगों से उसका क्या नया संबंध है। तब वह शमशान के सपाट मैदान में थी और श्रावण की काली रात से घिरा हुआ था।
तब तक उससे किसी बात का डर नहीं था। वह अपने साम्राज्य की निवासिनी थी। सुबह की रोशनी लोगों के मकानों से वह भयभीत हो गई। आदमी और भूत एक दूसरे से डरते हैं क्योंकि उनकी जातियाँ मृत्यु की नदी को भिन्न किनारों पर निवास करती है। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। विचित्र विचारों और रात के चलते रहने के कारण वह पागल और प्रतीत होती थी। सचमुच में वह देखने में ऐसे लग रही थी लोग उसे देखकर डर जाएं और बच्चे तो उसे पत्थर मारने लगे या भाग जाएं। भाग्य से जिस व्यक्ति ने उसे सबसे पहले देखा था वह एक यात्री था। वह उसके पास आया और बोला, माँ, तुम एक सम्मानीय महिला लगती हो। तुम अकेले में इस वेश में कहाँ जा रही हो? कादम्बरी अपने विचारों को एकत्रित नहीं कर पाने के कारण चुपचाप उसे घूरती रही। वह नहीं सोच पा रही थी कि अभी भी वह संसार के संपर्क में है कि वह एक सम्मानजनक महिला लगती है कि एक यात्री ने उससे सवाल पूछता रहा। आदमी ने फिर कहा, आओ माँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बताओ तुम कहाँ रहती हो? कादम्बरी सोच में पड़ गई। अपने ससुराल में वापस लौटकर जाना तो व्यर्थ होगा और पिता का घर है नहीं। तब उसे अपने बचपन की एक सहेली की याद आ गई। युवा होने के बाद से ही उसे जोगमाया ने नहीं देखा था, परंतु समय पर एक दूसरे को पत्र लिखे थे। कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता था, जो सही भी था, क्योंकि कादम्बरी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती थी कि जोगमाया उसे अपार स्नेह है, जबकि उसकी सहेली को शिकायत थी कि कादम्बरी उसे इतना प्यार नहीं करती जितना उससे करती है। दोनों को इस बात का विश्वास था कि यदि वे एक बार मिलें तो फिर से अलग अलग नहीं होंगे। कादम्बरी ने यात्री से कहा, मैं निश्चिंतपुर में श्रीपति जी के घर जाऊंगी। वह कलकत्ता जा रहा था। निश्चिंतपुर रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए उसने कादम्बरी को श्रीपति के घर ले गया और दोनों सहेलियों दोबारा एक दूसरे से मिली। पहले तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाई, परंतु धीरे धीरे एक दूसरे के बचपन के नाक नक्शे याद आए और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान लिया। क्या भाग्य है, जोगमाया बोली। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। परंतु तुम यहाँ कैसे आई बहन? तुम्हारे ससुराल वाले निश्चय ही तुम्हें जाने नहीं देते। कादम्बरी चुप रही और अंत में कहा, बहन, मेरे ससुराल वाले के बारे में मत पूछो। मुझे रहने के लिए एक कोना दे दो और मुझे अपनी नौकरानी समझो। मैं तुम्हारा काम करूँगी। क्या? जोगमाया चिल्लाई, तुम नौकरानी की तरह रखूँ? तुम तो मेरी घनिष्ठ मित्र हो, तुम मेरी। ऐसे कहते हुए चली गई। तभी श्रीपति अंदर आया। कादम्बरी कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर बहुत धीमी गति से बाहर चली गई और अपना सिर नहीं ढका और थोड़ी सा भी सम्मान या शिष्टता प्रकट नहीं की। जोगमाया भयभीत हो गई कि श्रीपति उनकी सहेली के प्रति गलत धारणा नहीं बना ले, इसलिए लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देने लगी। परंतु श्रीपति को जोगमाया की हर बात से जो जल्दी ही सहमत हो जाता था, उसकी कहानी को बीच में ही काटकर सहमति दे दी और कहा, जोगमाया को परेशान मानसिक स्थिति को छोड़कर चला गया। कादम्बरी आ तो गई, परंतु अपनी सहेली से घुल मिल नहीं पाई। मृत्यु उन दोनों के बीच में थी। जब तक चेतना शेष थी और उसका अपना अस्तित्व उसे परेशान किए था, वह दूसरों के प्रति घनिष्ठता महसूस नहीं कर पाती थी। जोगमाया देखकर कादम्बरी सोचती रही कि इसका पति है और इसका परिवार है, इसका अपना काम है, इसकी अपनी दुनिया है, और मैं बहुत दूर की दुनिया में हूँ। यह दुनिया के लोगों का स्नेह और कर्तव्यों की भागीदारी है और मैं खोखली छाया हूँ। जोगमाया भी बेचैन थी, परंतु अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थी। महिलाएं रहस्य पसंद नहीं करती, क्योंकि यह अनिश्चित कविता में वीरता और विद्वता में तो ढाली जा सकती है, परंतु गृहस्थ जीवन में इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब किसी महिला को कोई बात समझ में नहीं आए तो वह उसे भूल जाती है या नष्ट कर देती है, या फिर अपने काम के लिए एक नया रूप दे देती है। यदि वह इन दोनों के तरीकों में से एक भी नहीं अपना पाती तो उसको लेकर क्रोधित हो जाती है। कादम्बरी जितना ध्यान मग्न रहती, जोगमाया उसके प्रति उतना ही धैर्य खोती जाती। वह सोचती कि क्या कष्ट उसके मन पर बोझ बना हुआ है। फिर एक नया खतरा खड़ा हुआ। कादम्बरी स्वयं डरती थी, परंतु स्वयं से तो नहीं भाग सकती थी। जो लोग भूत से डरते थे वे उनसे डरते हैं जो उनका पीछा करते हैं, जहाँ भी उन्हें भय नज़र नहीं आता। परंतु कादम्बरी मुख्य रूप से अपने से भयभीत थी और किसी भी बाहरी वस्तु से उसे डर नहीं था। मध्यरात्रि को जब वह कमरे में अकेली थी तब चिल्लाती रही। शाम के वक्त लैंप की रोशनी में
अपनी छाया को देखकर उसका सारा शरीर काँप जाता और उसके भय के कारण सारा घर एक प्रकार से आतंक से भर जाता। नौकरों और जोगमाया में ने जो भूत देखना शुरू किया, अर्धरात्रि को कादम्बिनी अपने शयन कक्ष से रोती हुई आई और जोगमाया के दरवाजे पर से सिसकने लगी, बहन बहन मुझे अपने पैरों में पड़े रहने दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। कादम्बिनी जितनी भयभीत हुई उससे उतना ही गुस्सा भी आया। उससे अच्छा लगता था कि कादम्बिनी को उसी क्षण के लिए निकाल देती। अच्छे स्वभाव वाले श्रीपति के प्रयत्नों के बावजूद मेहमान को शांत करने में सफल हुए और कुछ समय दरवाजे के पास वाले कमरे में भेज दिया। अगले दिन जोगमाया ने श्रीपति को अपने कमरे में आने के लिए बुलाया और एक अप्रत्याशित था उसे भला बुरा कहने लगी। तुम अपने आप को मर्द कहते हो, एक औरत ससुराल से भाग कर आती है और तुम्हारे यहाँ रहने लगती है। 1 महीने गुजर गया, तुमने संकेत भी नहीं दिया उसे चले जाना चाहिए, और नहीं तुमने थोड़ा सा विरोध किया। यदि तुम कुछ स्पष्टीकरण दे सको तो मैं इसके बारे में समझूंगी। तुम सभी आदमी एक जैसे होते हो। पुरुष जाति की सभी महिलाओं के प्रति स्वाभाविक रूप से उदार होता है, उसके स्वयं की महिलाएं उसे दोषी ठहराती है। श्रीपति जोगमाया के शरीर को छूकर कसम खाता है और विवश होकर के सुंदर कादम्बिनी के प्रति उसकी सहानुभूति उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, परंतु वह अपने व्यवहार से इस बात को सिद्ध कर देता है। उसने सोचा कि एकाकी विधवा के प्रति उसके ससुराल वालों ने घृणित व्यवहार किया होगा और ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकी होगी और इसके कारण वो शरण में यहाँ पर चली आई। जब उसके माता पिता नहीं है तो उसको निकाल कैसे सकते, ये ऐसा कहकर उस मामले को छोड़ दिया, क्योंकि कादम्बिनी से अप्रिय प्रश्न पूछने के उसको दुखी नहीं करना चाहता। तभी उसकी पत्नी ने दूसरे तरीके से उस पर दबाव डाला, जिससे अंत में शांति बनाए रखने के लिए कहने लगा कि कादम्बिनी के ससुर को समाचार भेजना होगा। एक पत्र का परिणाम शायद संतोषजनक नहीं तो इसलिए श्रीपति ने निश्चय किया कि वह रानीहाट जाएगा और वहाँ जाकर के पता लगाएगा कि उसके ससुराल में वही कार्य गया। इस तरह श्रीपति रानीहाट चला गया और जोगमाया अपनी तरफ से कादम्बिनी से बोली, सहेली तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। कादम्बिनी ने जोगमाया की तरफ देखा और कहा, लोगों से मुझे क्या मतलब। जोगमाया आश्चर्यचकित रह गई। फिर वह तीखे स्वर में बोली, तुम्हें लोगों से कोई मतलब नहीं, परंतु हमें तो है। दूसरों के घर में औरत का अपने घर में रखने से हम लोग क्या सफाई देंगे। कादम्बिनी बोली, मेरा ससुराल कहाँ है, सत्यानाश हो जाए। जोगमाया ने सोचा, और यह अभागी औरत आगे क्या कहेगी। बहुत धीरे धीरे कादम्बिनी बोली, मुझे तुमसे क्या लेना, क्या मैं इस धरती की हूँ। तुम हंसती हो, रोती हो, प्यार करती हो, कोई अपनों को पकड़े हैं, मैं तो मात्र दर्शक हूँ। तुम मनुष्य हो, मैं एक छाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान ने तुम्हारी इस दुनिया में मुझे क्यों रखा है। उसकी शक्ल और बात इतनी पवित्र थी या इतनी विचित्र थी कि जोगमाया उसके कथन का कुछ अंश समझ पाई, पूरा नहीं। न तो वह बात को ही समाप्त कर पाई और न ही प्रश्न करने के बारे में समर्थ थी, इसलिए उसके विचारों में डूबी और वो वहाँ से चली गई। रात के करीब 10 बजे थे। श्रीपति रानीहाट से वापस आए। धरती मूसलाधार बारिश में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश कभी थमेगी नहीं, रात का अंत कभी होगा नहीं। जोगमाया ने पूछा, क्या हुआ। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, यह कहकर श्रीपति ने कपड़े बदले और फिर खाना खाने बैठ गए। भोजन करने के बाद वो धूम्रपान करने लगा। उसके दिमाग में उलझन थी। उसकी पत्नी कुछ देर तक उत्सुकता को दबाती रही। फिर उसने बिस्तर पाई और पूछा कि तुमने क्या सुना। यही कि निश्चय ही तुमसे गलती हुई है। जोगमाया चिढ़ गई। औरतें कभी गलती नहीं करती, और यदि करती भी हैं तो एक समझदार आदमी कभी उनका जिक्र नहीं करता, इसी में अपना भला समझता है और यह मान लेता है कि उससे गलती हुई है। जोगमाया पलट कर बोली, क्या अब तुम मुझे इस बात को बताओगे। श्रीपति ने जवाब दिया, जिस औरत को तुमने घर पर रखा हुआ है तुम्हारी कादम्बिनी नहीं है। यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई, खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह बात उसके पति ने कही थी। क्या मैं आपकी सहेली नहीं हूँ, मैं अपनी सहेली को नहीं जानती। क्या उसे पहचानने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊँ। तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। श्रीपति ने स्पष्ट करके कहा कि चतुराई को लेकर झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसने कहा उसको साबित कर सकता है। इस पर उसे कोई संदेह नहीं कि जोगमाया की कादम्बिनी की मृत्यु हो चुकी है। जोगमाया ने जवाब दिया, सुनो, तुम निश्चय ही कोई बड़ी गलती की है। तुम किसी गलत के घर पर चले आए हो। जो उसने कहा वो तुम ठीक से समझ नहीं पाए। तुम्हें किसने कहा था कि
तुम ही वहाँ जाओ, एक चिट्ठी लिख देते और सारी बात पता चल जाती। जब पत्नी को विश्वास नहीं किया तब उसने कार्य को सही प्रकार से किया तो श्रीपति को चोट पहुँची। उसने सब तरह के सबूत पेश किए परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला। आधी रात को दोनों तर्क में उलझे रहे। यद्यपि दोनों इस बात से सहमत हो गए कि कादम्बिनी को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन श्रीपति को विश्वास नहीं था कि उसके मेहमान को इतने समय तक अपने आप को जोगमाया की सहेली बताकर धोखा दिया, जबकि जोगमाया का मानना था कि कादम्बिनी एक वेश्या थी जो इस तरह कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उनकी आवाज़ तेज होती चली गई। भूल गए कादम्बिनी पास वाले कमरे में सोई हुई है। एक ने कहा, हम अच्छी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं बताता हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। जोगमाया ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे इसकी क्या परवाह है, मैंने भी अपनी आंखों से अच्छी तरीके से देखा है कि वो कादम्बिनी है। कुछ देर बाद जोगमाया बोली, ठीक है, मुझे बताओ कादम्बिनी की मौत कब हुई। उसने सोचा कि कादम्बिनी की मृत्यु की तिथि और कादम्बिनी द्वारा जोगमाया को लिखे पत्र की तिथि में कोई अंतर होगा तो यह साबित कर देगी कि कादम्बिनी गलती पर है। परंतु जब कादम्बिनी की मृत्यु की तिथि बताई तो दोनों ने पाया कि जिस दिन कादम्बिनी घर से आई उससे कुछ दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जोगमाया का दिल कांप उठा और वह श्रीपति भी अप्रभावित नहीं रह सका। तभी दरवाज़ा खुला, एक भीगी हवा अंदर आई और लैंप बुझ गया। सारे घर में अंधकार छा गया। कादम्बिनी कमरे में खड़ी थी। करीब 1 बजा था। बाहर बारिश हो रही थी। कादम्बिनी बोली, दोस्त, मैं तुम्हारी कादम्बिनी हूँ, परंतु मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। जोगमाया भयभीत होकर चिल्लाई और श्रीपति कुछ बोल नहीं पाए। परंतु मृत होने के अलावा मैंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाई। यदि जीवित लोग के बीच मेरा कोई स्थान नहीं है तो मृत लोगों के बीच में भी नहीं है। ओह, मैं कहाँ जाऊँ। यह इस प्रकार से चिल्लाते हुए मानो उस संसार के कोई रचयिता को इस घनी बारिश घनी रात में जगाना चाहती हो। फिर वो बोली, ओह, मैं कहाँ जाऊँ। जोगमाया अंधकार से भरे घर में बेहोश होकर गिर पड़ी और कादम्बिनी उसे छोड़कर अपनी खुद की जगह ढूंढने के लिए बाहर संसार में चली गई। यह कहना मुश्किल था कि कादम्बिनी रानी हाट कैसे पहुंची, पर पहले दिन उसने अपने आप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। सारा दिन भूखे पेट जर्जर मंदिरों में बिताया। जब वह असमय वाला तीसरा पहर वर्षा और गहन अंधेरे से युक्त था और आने वाले तूफान के भय से लोग घर में छिपे हुए थे, कादम्बिनी बाहर निकली। जब कादम्बिनी ससुराल पहुंची तब उसका दिल कांप रहा था। वह अपने चेहरे पर एक मोटा पर्दा डालकर अंदर घुस गई। किसी भी द्वारपाल ने उसे नहीं टोका। उन्हें लगा कि कोई नौकरानी होगी। तेज वर्षा हो रही थी। हवा में शोर था। मालकिन शारदा शंकर की पत्नी अपनी विधवा बहन के साथ ताश खेल रही थी। रसोई में एक नौकर था। बच्चा बीमार शयन कक्ष में सो रहा था। कादम्बिनी सबकी नज़रों से बचती हुई कमरे में घुस गई। मैं नहीं जानता कि वह अपने ससुराल क्यों आई। वह खुद नहीं जानती थी। उसे सिर्फ यह महसूस हुआ कि उसने बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी और उसने यह सोचा भी था कि और कहाँ जाना है या क्या करना है। प्रकाशमान कमरे में उसने देखा कि बच्चा सो रहा है, जिसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई हैं और उसका शरीर बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया है। उसे देखकर उसका हृदय सूखा और प्यासा हो गया। काश वह कुमलाए शरीर को सीने से लगा पाती। शीघ्र ही उसके विचार है कि मेरा तो कोई अस्तित्व है नहीं। उसकी माँ और उसके सहेलियों के साथ गपशप लगा रही है और ताश खेल रही हैं। ताश खेलना पसंद है जब तक मैं इसको संभालती हूँ। इसकी माँ चिंता से मुक्त रहती थी। नहीं, अपने बच्चे पर जरा सी भी चिंता है उसे। इस प्रकार का देखभाल करती थी। इस प्रकार की देखभाल कौन करेगा। जब बच्चे ने करवट ली और आधी नींद में चिल्लाया, आंटी मुझे पानी दो, तो उसका प्रिय अभी भी उसे भूला नहीं है। बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उसने कुछ पानी उड़ेला और अपने सीने पर लगाकर उसको पानी पिलाया। बच्चा सोया हुआ था। उसे सुपरिचित हाथों में पानी पीने में अजीब नहीं लगा, परंतु जब कादम्बिनी ने बहुत लंबे समय तक अपनी अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पुचकारा, जब धीरे धीरे हिलाकर सुलाने लगी, तब वह जाग गया और लिपट गया। तुम मर गई थी आंटी, उसने पूछा। हाँ प्रिय, और तुम अब वापस आ गई हो, अब दोबारा मत जाना। इससे पहले कि वह जवाब देती, दुर्भाग्य उसके ऊपर टूट पड़ा। नौकरानी जो साबूदाने का प्याला लिए आ रही थी, वो प्याला गिरा दिया और उस पर गिर पड़ा। टूटने की आवाज़ सुनकर मालकिन अपने ताश के पत्ते छोड़कर कमरे में आ गई। वह एक लकड़ी के खंभे के समान खड़ी रही। न तो उस भागने का समर्थ था और न ही बोलने का। यह सब देख कर के बच्चा भी भयभीत हो गया। रोते हुए बोला, आंटी चले जाओ, आंटी। वह बोला, चली जाओ। अब जाकर कादम्बिनी को समझ में आया कि वो मरी नहीं है। वही पुराना कमरा, वही पुरानी चीज़ें, वही बच्चा, वैसा ही प्यार, सब कुछ जीवित अवस्था में उसके सामने था। उन चीज़ों को में और अपने आप को में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। वह अपनी सहेली के घर, उसे लगा था कि वह जोगमाया की बचपन की सहेली मर चुकी है। वह अपने बच्चे के कमरे में गई और जान गई थी कि लड़की के आंटे की मृत्यु नहीं हुई है।
दर्द भरी आवाज़ में वह बोली, बहन तुम मुझसे क्यों डरती हो? देखो मैं वैसी हूँ जैसे तुम मुझे जानती थी। उसकी जेठानी देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। शारदा शंकर स्वयं जनाना में आया और हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में बोला, क्या ये ठीक है? सतीश मेरा इकलौता पुत्र है, तुमने अपने आप को उसके सामने प्रकट क्यों किया? क्या तुम्हारे संबंधी नहीं है? जब से तुम गई हो प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। वह निरंतर बुखार से पीड़ित है। दिन रात आंटी आंटी चिल्लाया और बोलता, तुम संसार छोड़ चुकी हो, अब इन माया के बंधनों को छोड़ दो, हम संपूर्ण क्रियाक्रम करेंगे। कादम्बनी और सहन नहीं कर सकी। वो बोली, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मेरी मृत्यु नहीं है। ओह, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं मरी नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। उसने ज़मीन पर एक पीतल का बर्तन उठाया और माथे पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा। देखो, चिल्लाई, वो चिल्लाकर बोली, मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर मूर्ति बनकर खड़ा रहा। बच्चा वैसे भयभीत होकर चिल्लाया। दोनों महिलाएं अचेत पड़ी थी। तब कादम्बनी, मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, चिल्लाते हुए कुएं की ओर भागी और कुएं में कूद गई। ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने छपाक की आवाज़ सुनी। सारी रात बीत गई। बारिश आती रही। अगले दिन सुबह भी आती रही। दोपहर तक आ रही थी। मरकर कादम्बनी ने साबित कर दिया कि वो मरी नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी लिविंग और डेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. I think you have been clear with this note. I would like to conclude this beautiful story, living or dead. Have a nice day. Thank you.